are at now 184 page NCERT book. Chapter number 9 we are doing class 12 and we are covering specific skills. Okay. In specific skills we started with communication skills first, that I covered in the previous lecture. Now I am going to cover the components of communication skills starting with speaking. Okay. Let's begin with speaking. It's at page number 184. One important component of communication is speaking with the use of language. Of course, when you speak, you're going to speak some language. It could be any. Language involves, this is the meaning of language, you must write in your notes. Language involves, underline, use of symbols which package meaning within them. Symbols yani, it could be alphabets, it could be anything, okay. So there are certain symbols which we use in language. To be effective, a communicator must know how to use language appropriately. Of course, if you wanted to be an effective communicator, you should know the variations or the variety of the language. Because language is symbolic. Because there are symbols which are involved, so इसमें variety, rhythm important है. It is necessary to be clear. Underline कीजिए, important word. Symbolic है, clear होना चाहिए, precise. कुछ लोग जब आपसे कभी-कभी मिलते हैं ना, बहुत बेकार की जो लोग बात करते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं. आपके घर में भी बहुत सारे relatives होंगे, friends होंगे, neighbors होंगे. And that auntie whenever she comes, or that uncle whenever he comes, what happens is they speak and keep on speaking, and that has no message in it, no value in it, no idea in it. Are you interested in that? I'm sure not. So whenever we are speaking, it's not just using the words and speaking like this. It has to have a clear and a precise idea. मतलब जो नपातुला और अच्छा बोलते हैं, उन्हें हम अच्छा speaker बोलते हैं. As possible when using words, communication takes place within a context. So one needs to consider the other's frame of reference also. That is the context used by the sender to say something. Also, whether he or she shares your interpretation. आगे से बताते हैं आपको. If not, it is important to adjust, underline कीजिए. It's important to adjust your vocabulary level and choice of words to fit the level of the listener. अब, if I am talking to a child and I started teaching him psychology, will it be an appropriate speaking with him? Of course not. It has to be age appropriate. It has to be किससे बात कर रहे हैं? It's something like मैं स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने गई, तो अगर मैं वहाँ इंग्लिश बोल रही हूँ और उनको इंग्लिश में समझा रही हूँ, क्या ये अच्छी स्पीकिंग मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझे देख रहे हैं, वो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे. सो माई लैंग्वेज, चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इतने सिंपल होने चाहिए उनके साथ कि वो मेरी बात को समझ सके. Alright? If not, it's important to adjust your vocabulary level. Vocabulary level बढ़ाना कहाँ है, कम कहाँ करना है. I should have that intelligence. Alright? Remember that slang expressions. अब कुछ लोग मैंने देखा है कि वो इंग्लिश स्लैंग सीख लिया और एंड दे आर क्यों दूसरों के सामने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए बोल रहे हैं. एंड समटाइम्स दे लुक ऑकवर्ड, इडियट दे लुक लाइक. हाउ टू एक्सप्लेन देम, डोंट नो. इट डजंट लुक नाइस जब आप इंप्रेशन बनाने के लिए ऐसे लोगों के सामने स्लैंग बोल रहे हैं जिन्हें समझ में ही नहीं आ रहा. सो इससे आप अपनी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बना रहे. इससे आप क्या कर रहे हो, उल्टा दिखा रहे हो कि मुझे I have no sense that where do I have to use the slang. Alright? Further, slang expression, words unique to a culture or region. जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, पंजाबी mainly, if they go abroad, वहाँ पर जोर-जोर से पंजाबी बोलना, they feel it is good. जोर-जोर से बोलना, जोर-जोर से हंसना, बस में बैठ के जोर से बोलना. क्या ये शो करता है कि हम बहुत अच्छे स्पीकर हैं और बड़ी इंग्लिश मारना या मे बी अपनी पंजाबी दिखाना? नो, इट डजंट शो दैट वी आर अ गुड स्पीकर. वी डोंट इवन हैव अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स. ओके, सो इट मीन्स कल्चर और रीजन के हिसाब से हमारी लैंग्वेज यूनिक होनी चाहिए. देन इफेमिज्म can sometimes becomes obstacle in good communication. मतलब what kind of language and the way you expression is also very important. Then comes the listening.
लिसनिंग मतलब आप एक अच्छे लिसनर भी होने चाहिए। लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल दैट वी यूज डेली। Your academic success, employment achievement, personal happiness to some extent or to large extent depends upon your ability to listen effectively. अगर आप टीचर का क्लास में लेक्चर ही सिर्फ अच्छे से सुन लें, जैसे अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप इसको ही सुन लें, तो half of your success is done, half of your job is done. कब listening, not only listening, effective listening, okay, whatever I'm trying to explain, you are gathering that. At first, listening may appear to you as a passive behavior. आपको लगेगा आप सिर्फ बैठ के ऐसे देखना ही है और सुनना ही। No, it's not passive, it's very active. आपको word by word सुनना है, okay? As it involves silence. हमें लगा शायद चुपचाप बैठना है, इसलिए ये क्या है, बस बैठना है, ऐसे करके बैठ जाओ क्लास में। No, silence will never mean कि आप पार्टिसिपेट ना करें, वो भी कैसे, कॉन्शियसली। यू हैव टू बी एक्टिव फ्रॉम ब्रेन, फ्रॉम योर सेंसेस, but you need to be quiet when you are listening to others. But this image of passively is far from true. Listening requires, underline करो, इसको लिखें अपने notes में, a person to be attentive. He or she should be patient. कैसे, दूसरे की बात सुनने के लिए patience चाहिए बहुत ज्यादा। नॉन जजमेंटल होना चाहिए, मतलब आप उसको जज करना बंद कीजिए, ये टीचर ऐसी है, ये वैसी है। फिर आप अगर आप जजमेंटल हो जाएंगे, ये बंदा अच्छा है, ये बुरा है, फिर आपको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगने वाली। एंड येट हैव द कैपेसिटी टू एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड, मतलब आप चुपचाप बैठे हैं, जजमेंट भी नहीं कर रहे, फिर भी आप एनालाइज कर रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। हियरिंग एंड लिसनिंग दोनों अलग हैं, इंपॉर्टेंट लिखो इसके ऊपर, आपको पेपर में आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। आपको पता है हियरिंग एड होता है, लिसनिंग एड नहीं होता। हियरिंग इन्वॉल्व्स ओनली रिसेप्शन ऑफ द वर्ड्स, लिसनिंग इन्वॉल्व्स रिसीविंग द वर्ड्स एंड डिकोडिंग इट, सेंडिंग दोज वर्ड्स विद द मैसेज और अ मीनिंग टू योर ब्रेन। दोनों में फर्क है। कैसे, बुक में देखते हैं क्या लिखा है। हियरिंग इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कान खराब हो गया मतलब हियरिंग गड़बड़ हो गई, लेकिन लिसनिंग कौन से पार्ट में हो रही है ये नहीं है, इन्वॉल्व यही है, लेकिन हियरिंग मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, बायोलॉजिकल समथिंग अपीयर, मतलब व्हिच कैन बी चेक्ड। सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब आपको सुनना बंद हो गया तो कान के डॉक्टर को दिखा दो। आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है तो कोई डॉक्टर हेल्प नहीं कर सकता, उसके लिए कान के डॉक्टर नहीं होते। दैट इन्वॉल्व्स रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज, सिर्फ आपको ये क्या है, ये सेंसेस है, एक वन ऑफ द सेंसेस है, और ये आपका चैनल है कुछ वर्ड्स को ग्रैब करने के लिए। ओके, राइट। इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ लिसनिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ लिसनिंग, क्योंकि आप बिना लिसनिंग इसके नहीं कर सकते। बट इन्वॉल्व क्या है, ये भी इन्वॉल्व है, मेरे बाकी सेंसेस भी एक्टिव है, मेरा ब्रेन भी एक्टिव है, सबकी कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, लिसनिंग। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, हियरिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, लिखा नहीं है, लिख दीजिएगा इसमें, नैरो एंड ब्रॉडर। Okay, a process that involves reception, attention, okay, assignment of meaning, meaning बनाया, listeners response to the message, और साथ में हाँ समझ में आया, response भी दे रहे हो आप साथ साथ। Then comes the reception, क्या है? The initial step is, पहले तो सुनना है ना बेटा involved, ये सबसे पहला step है listening का। The initial step, number one step is listening process is the reception of a stimulus or a message. Reception किसके थ्रू होगी, कान की जरूरत पड़ेगी। A message could be auditory or a visual, आपको फोटो दिखा दी गई, आपने साथ ही दिमाग चलाया, यार ये तो उसकी फोटोग्राफ है, बोला नहीं उन्होंने कुछ, बट फोटोग्राफ देखते ही आपको पता चल गया। So it could be visual. The hearing process is based on a complex set of physical interactions that takes place involving the ear and the brain. In addition to using the hearing mechanism, people listen through their visual systems also. They observe a person's facial expression. आप अपने मम्मी पापा के expression से समझ जाते हैं आज वो अच्छे मूड में है कि बुरे में, है ना? So expressions भी हो सकते हैं, posture भी हो सकता है, लेटे हुए हैं इसका मतलब I should not go and disturb them, they are relaxing. If he is sitting on a couch and reading the newspaper, he is active, he is using his brain, इस time पर मुझे अच्छी बात करनी चाहिए। मूवमेंट से पता चल जाता है, बाहर से आए हैं थके थके और लथार्जी बॉडी है, सो मुझे मैसेज मिलता है आई शुड नॉट गो एंड टॉक टू हिम, ही इज ऑलरेडी टायर्ड। अगर वो एनर्जी से वापस आए हैं, यस ही इज एनर्जेटिक। सो इट मींस आपको अपीयरेंस से भी क्यूज मिल जाते हैं, क्लूज मिल जाते हैं कि
आपको क्या रिसीव हुआ मैसेज। ओके, अटेंशन इज इंपॉर्टेंट। आपके जागते, अब वो तेज आ रहे हैं या स्लो आ रहे हैं, आप ऐसे बैठे हो तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा। यू नीड टू बी अटेंटिव फर्स्ट। ओके, वंस द स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, दोस वर्ड्स, विजुअल्स, आपने देखा पापा भाग के आ रहे हैं, क्या हुआ, आर यू ओके, तो क्यों पता चला आपको, कैसे पता चला, बिकॉज यू वर अटेंटिव, राइट। सो वर्ड्स और विजुअल्स or both is received. It reaches the attention stage of the human processing system. In this phase, the other stimuli recede so that we can, underline कीजिए, we can concentrate on specific words or visual symbols. Normally, your attention is divided between what you are attempting to listen to. आप कहाँ divided हो? What you are attempted to listen to and what is happening around you. अब देखो, आप क्लास में अटेंटिव हो, आपके साथ वाली फ्रेंड बोले जा रही है कुछ ना कुछ घर की बात, कभी कुछ, अब वो बोल रही है, वो भी दिमाग में जा रहा है, सामने यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, विल देयर बी अ प्रॉपर रिसीविंग ऑफ द वर्ड्स एंड द इमोशंस व्हाट टीचर इज पासिंग थ्रू? नहीं। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, साथ में अपना गैजेट भी चला रहे हो, टीवी भी चल रहा है, म्यूजिक भी चला रखा है उधर, सो इतना कुछ क्या है, आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, what is happening around you will also matter. जैसे किसी वेडिंग पे जाइए, बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा होता है and you try to concentrate, you try to communicate with the other person who's sitting next to you, your masi or your bua or maybe your relative. So will there be an effective communication? बोल के ऊंचा बोल के इरिटेशन होती है, फिर हम क्या कहते हैं, यार let this be over, then we will talk, क्योंकि मजा नहीं आ रहा बात करने का। मजा नहीं आ रहा मतलब बीच में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं which are bothering you। ऐसे ही बहुत बार आपको क्लास में you have to tell your friend just shut up yaar, please let me concentrate. So who's around you, what is there, so it depends upon that. All right, let's move further. Consider you're watching a movie. Oh yes, watching a movie. The person is in front of you is constantly, oh my god, this happens a lot of time. I don't know why people doesn't even have basic senses कि आप थिएटर में बैठे हो, आपस में बातें करते रहेंगे, मोबाइल चलाएंगे, अरे मोबाइल चलाना, घर बैठिए ना, why are you in the theater? So ये बेसिक चीजें होती हैं जो लोगों को नहीं समझ में होती, फिर उनको बोलना पड़ता है, भाई जी प्लीज यू गो आउट एंड टॉक, है ना, इतनी जोर से फोन पे बात कर रहे होंगे। So what happens then? Are you able to concentrate on the movie? You're not, and you don't want to miss even a single dialogue because it's important, है ना? So there is a buzz in the sound system. You are also worried about the forthcoming examination. So your attention is being pulled in different directions. Okay? शोर भी हो रहा है, फोन भी बज गया, ध्यान भी कहीं और है, घर भी जल्दी जाना है, यहाँ कल टेस्ट भी है। So divided attention, underline करो, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है ये। Divided attention makes it difficult for you in receiving signals or messages. Okay? क्योंकि there are many hindrances in between. So you're not able to get the signal right. Paraphrasing. Paraphrasing is very good and an important activity in communication. क्या है? How would you know that someone has been listening? जैसे टीचर क्या करती है? टीचर अपनी बात बोल रही होती है, उसको दिख जाता है कि बच्चा सुन नहीं रहा। हाँ जी बेटा, ABCD, ABC person whosoever is sitting there, just get up and paraphrase what did I say. अब अगर उसमें कुछ भी वेरिएशंस हैं तो क्या समझ में आया, जो मैं आपने बोला वो पूरा नहीं पहुंचा, बीच में कोई ना कोई हिंड्रेंस था, मे बी mental block, physical blocks around him, so it could be anything. Okay, so paraphrase, ask him or her to restate what you said. इसके पीछे वो चाइनीज विस्पर बहुत अच्छा गेम है। सो वो सर्कल में बिठा देते हैं 20-30 लोगों को, और यहाँ से एक सेंडर एक मैसेज भेजता है कान में धीरे से, so that the next person is not able to listen. I'm sure you must have played. The person is going to say the same words to the next, and इस तरह से सारे आगे। And हमने बहुत बार देखा है कि जो मैसेज गया होता है उसका कुछ और ही बन गया होता है लास्ट में। That means every time it was not properly, you can say, what do you say? The person has not caught the signal right, or maybe सुना नहीं या attentive नहीं था या जो भी था। Okay, the person in doing this does not repeat your exact words. Exact words नहीं जाते वहाँ। He or she make a summary of the idea जो उसको समझ में आया, just received and provided you with the restatement of what he or she understood. ऐसा ही होता है, इसको बोलते हैं paraphrase.
पैराफ्रेज करना, यानी आपने जो बात बोली जैसे मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस में आप नहीं बता सकते कि हाँ ये बता सकते मुझे ये समझ में आ गया, तो भी काम हो गया. दैट व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू आर गेटिंग एग्जैक्टली इन द सेम वे. Maybe not by word, but yes, the senses or the sense did not change, okay? The emotion didn't change. It allows you to understand how much he or she understood of what was communicated. यहाँ तक आप जरूर लिखिए अपने notes में आगे. If someone cannot repeat or write down a summary of what was said, he probably did not get the whole message. अगर उसे समझ ही नहीं आया वो भी नहीं बता पाएगा. Or did not understand it. We can keep this in mind when we are listening to our teacher in the class or to others. Try to paraphrase what you heard. And if you cannot do so, you should seek immediate clarification if possible. आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आई ना टीचर की, तो आपको पता है क्या करना चाहिए? आपको खड़े होकर बोलना चाहिए, मैम क्या ये बात है जो आप समझाना चाहते हो? पैराफ्रेज करो उसे जो आपने बोला. I have understood this. Is this what you are trying to explain? So आपको पता चल जाए टीचर की yes exactly, no beta you lost this particular idea. Okay, I shared 3 ideas but you were able to caught 2 but you could not get the third one. तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या मिस कर गए. So you must do that. Okay, try verbally paraphrasing the next time you are engaged in a demanding conversation, such as when you are receiving directions or when you are in a conflict situation with a friend. है ना, आपकी आपस में लड़ाई हो गई, तो you must repeat the words, okay? Repeat to the speaker what you think or he or she has just said in order to check whether you both received and understood the same thing. उसने बोला क्या तुमने ये बोला मुझे? Before you start fighting with अच्छा तुमने ये बोला, हमने क्या किया? जजमेंटल हो गए. आपको बोला है ना जजमेंटल नहीं होना, आप पहले पूछ लें, Are you trying to say this to me? Have I done this? You said. I never. तो आपको एक तो क्लैरिफिकेशन हो गया, एक अच्छा कम्युनिकेशन भी हो गया. So better to clarify first. What are you trying to say? Okay. You'll be surprised how many times conflicts results from miscommunication. क्योंकि आपको बात अच्छे से समझ में ही नहीं आई. It's something like बहुत बार होता है, 3 फ्रेंड्स हो ना, उनमें झगड़ा पता है कैसे होता है? इस बीच वाली फ्रेंड ने इसको कहा तेरे बारे में ये बोला है, और इसको कहा तेरे बारे में इसने ये बोला है, because she wants to eat the fruit from both the sides. Okay, she wants to be goody with both, or maybe it can happen with the boy also. अब होगा क्या, ये दोनों लड़ पड़ते हैं, इन्हें तो बात भी नहीं पता हुआ क्या. So इन दोनों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे के आमने सामने आके, Are you trying to say this about me? The other person will clarify. ज्यादातर झगड़े conflict मिसकम्युनिकेशन से होते हैं और लोगों में इतनी समझ नहीं होती कि वो बात कर लें, पैराफ्रेज करें, उनके सामने जाके उस बात को पूछें, पहले इंश्योर करें, डिड यू से दैट? तो अदर पर्सन विल क्लैरिफाई, नो आई नेवर मेंट टू से दिस, एटलीस्ट आई सेड इन दिस मैनर. अब आमने सामने बात हो जाती है और आधे से ज्यादा झगड़े खत्म हो सकते हैं. कैसे? अगर एक अच्छी कम्युनिकेशन हो. ऑलराइट, लेट्स मूव टू assignment of meeting. Okay, the process of putting the stimulus we have received into some predetermined category develops as we acquire language. Okay, we develop mental categories. इसको underline कीजिए, 1 mark का question है. हम क्या develop करते हैं? It's the mental categories for interpretation the message we receive. जब भी हमें कोई मैसेज मिलता है हम क्या यूज करते हैं? कॉग्निटिव लेवल यूज होता है, ब्रेन यूज होता है कि हम उसके मैसेज को डिकोड कर सकें. फॉर इंस्टेंस, आवर कैटेगराइजिंग सिस्टम फॉर द वर्ड चीज may include such factor as a dairy product, its peculiar taste. जैसे मैंने बोला have you ever eaten cheese, तो क्या हो गया? मेंटल कैटेगरी. आपके सामने वो वाइट पीस आ गया, चीज का टेस्ट भी आ गया मुंह में. सो बोलते हैं जी डेयरी प्रोडक्ट होता है, इसका टेस्ट पेक्यूलियर होता है, कलर भी पता चल गया, एंड वी आर एबल टू रिलेट. ठीक है, तो हमारे सेंसेस देखते ही, जैसे बहुत सारे लोगों को चाट पकौड़ी देख के मुंह में पानी आता है, कैसे? सेंसेस उसकी बात सुनकर आप इमेजिन कर लेते हो, टेस्ट वर्ड्स भी एक्टिव हो जाते हैं. रोल ऑफ कल्चर इन लिसनिंग, कल्चर का बड़ा रोल प्ले होता है. लाइक द ब्रेन, the culture in which we have been brought up also influences our listening and learning abilities. Asian culture, जहाँ हम रहते हैं, such as India, emphasize on listening by being a silent communicator.
When receiving messages from seniors or elders, घर में अगर बड़ा बोल रहा है तो आप बोलना अलाउड नहीं है हमारे इंडियन कल्चर। आप बड़ों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आप बड़ों के सामने बोल रहे हैं, हमारी फैमिलीज में बहुत बार सुनते हैं। तो कोई बड़ा बोल रहा है तो हमने तो छोटों ने बोलना ही नहीं है, ये हमारे कल्चर में। Some cultures focus on controlling attention. बुद्धिज्म, फॉर इंस्टेंस, बुद्धिज्म में किसमें बिलीव करते हैं? अंडरलाइन करो, माइंडफुलनेस में। इंडियन कल्चर में क्या है? साइलेंट कम्युनिकेटर है हम, अंडरलाइन कर लीजिए कीवर्ड साइलेंट। बुद्धिज्म कहते हैं माइंडफुल रहो, इसका मतलब डिवोटिंग योर कंप्लीट अटेंशन टू व्हाटएवर यू आर डूइंग। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कैसे करो? फील से करो, माइंड से करो। जैसे पढ़ ही रहे हो तो पूरा ढंग से पढ़ो, मूवी देख रहे हो तो फुल इन्वॉल्वमेंट से करो, खाना खा रहे हो तो टेस्ट लो उसका। आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं कि वो टीवी देखते हुए खा क्या गए। They can't even tell the taste of that thing. उसमें था क्या? कभी have you ever tried this? You must try. I do this with perhaps we would have been in front of each other, physically present होते तो मैं आपसे ये एक्टिविटी कराती कि आप आंखें बंद करके एप्पल का एक पीस उठाइए और उसे मुंह में एक छोटी सी बाइट लो, उसके जूस को टेस्ट करो आंखें बंद करके। ट्राई दिस। चॉकलेट ले लो जो आपने कितनी बार खाई होगी, लेकिन इस बार मेरे कहने पर इस तरह से खाओ। कैसे? घर में करो अपने एक्टिविटी, सब एक एक बार लो, छोटा सा बाइट लेके मुंह में रख लिया एंड सिट, उसे मुंह में मेल्ट होने दो। अब उसको मुंह में ऊपर नीचे टंग से टच करो एंड देन फील। व्हाट डू यू फील? इट कम्स इन योर ब्रेन। तुम्हें पता है टेस्ट बड्स हमें यहाँ तक कनेक्ट करते हैं। माइंडफुलनेस, व्हाटएवर यू डू इट विद फुल फर्वर, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ओके, सो माइंडफुलनेस बुद्धिज्म बहुत बिलीव करता है, तभी तो वो मेडिटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स दे टॉक अबाउट। ट्रेनिंग इन माइंडफुलनेस व्हिच स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड कैन हेल्प टू डेवलप लॉन्गर अटेंशन स्पैन। और ऐसे बच्चों का कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन बहुत लंबा होता है। Therefore lead not only to better listening but also to sympathetic listening, क्योंकि वो आपसे सुन रहे हैं तो sympathetic यानी they are able to connect with you, connection बनाना। Okay, however in many cultures such listening and enhancing concepts are not present. कहाँ? western culture में ये नहीं है। Give some tips to improve your listening skills. Body language we will cover in the next videos. Keep watching. Take care. Bye bye.